Hey guys, hi, good evening, and welcome to the class. First of all, let's be honest, this is going to be a recorded session. आपको पता है 30th to round 2, the entire Unacademy team is going in for holidays, so that's why this is going to be a recorded session. But हो सकता है ये सेशन आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होगा. Why? Because I get a lot of questions कि सर how to study biology exactly? पढ़े कैसे? मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आता बायो पढ़ने में. ऐसा ऐसा कई लोग कहते हैं. And sometimes there's this problem that biology is रट्टा. नहीं होता रट्टा हमसे. Right? So there's a lot of stuff about biology which is much more interesting. And in this sort of short video, 20 to 30 minutes जो होगा, will answer a lot of questions. Is biology really boring? Or can we for real fall in love with biology? क्या सच में biology हमें हमारे लिए अच्छी हो सकती है या जो दुनिया कहती है वो सच है कि रट्टा मारना पड़ता है? पहला क्वेश्चन. दूसरा, where do these examinations come in? NEET. And क्या डॉक्टर बनना is the only path from biology? Why do we study biology in the first place? Physics का सर हम घर में गाड़ी बनाना है, घर बनाना है, रॉकेट बनाने हैं, बट बायोलॉजी कहाँ काम आती है? ये नीट क्या है? नीट एग्जाम देना जरूरी है क्या? और क्या कोई और रास्ते भी हैं? So we'll try to fall in love with biology in this session. So the session is how to fall in love in biology and how do you study it, right? So before we start, or actually let me start and then नहीं थोड़ा सा introductory things are going to be same, तो you know class notes वगैरह आपको trackers में मिल जाएंगे और telegram that is Sona Singh Academy पे you can ask doubts if at all. What's Bugs Bounty? If you find an inappropriate behavior, you let us know by simply filling up the form that's in the description and we'll take care of it, and obviously we'll be rewarding you for that as well. Unacademy का plus और iconic subscriptions are best ways to access whole of Unacademy, जहां आपको Unacademy के popular batch courses classes में courses में access मिलता है. टॉप एटिकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल होता है. Besides, you have live classes, you have practice tests and amazing things. अभी जो है the prices are at its best. तो सबसे पहले आप कैटेगरी चूज करना, जेई नीट फाउंडेशन. इससे क्या होगा, आपका बोर्ड और नीट दोनों लेवल का प्रिपरेशन, फाउंडेशन प्रिपरेशन हो जाएगा. जितना लंबा समय चूज करोगे उतना पर मंथ प्राइस घटेगा. फिर ऐड करना कोड सोना05 विच गेट्स यू एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एंड देन यू आर गुड टू गो. अब आइकॉनिक को लेके कंफ्यूज भी मत होना, बिकॉज आइकॉनिक इज जस्ट आपका प्लस का बड़ा भाई. प्लस के सारे फीचर्स हैं इसमें, उसके अलावा देयर इज अ पर्सनल mentor here who will be able to help you in other work areas. There will be live doubt solving, study planning activities and parent connect sessions as well. ठीक है, तो यहाँ पे भी same category महीना and the code and you're good to go. We'll talk about special classes as well, but abhi we have something more important to talk about. So let me switch to the very beautiful question, why do we study biology in the first place? Slideshow, where is slideshow? लगता है मैं स्लाइड शो करना भूल गया. अभी कर लेते हैं. Okay, so we have that same beautiful question that I think we all got to ask whenever we want to talk about कि हम हमें कोई भी चीज़ें पसंद है या नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट पसंद है नहीं. I think there's a common question जो हमें पूछना पड़ता है. So biology में if you want to really fall in love with biology, you got to ask yourself these questions. और अगर नहीं पूछा है तो आप पूछो, क्या हम स्पेस में रह सकते हैं? और अगर नहीं सकते तो क्यों नहीं रह सकते? ऐसा क्या है स्पेस में जो हमें रहने नहीं देता? पृथ्वी भर रही है, इलॉन मस्क बोल रहे हैं कि हमें स्पेस पे जाना है, मार्स कॉलोनाइज करना है. व्हाई इज इट डिफिकल्ट? अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन, इसमें क्या है? बट सिर्फ ऑक्सीजन या और भी बहुत चीजें? मैंने इतनी चीजें आपको पढ़ा दी, कहाँ स्टोर होती है सब सारी चीजें? एक पेन ड्राइव को आप इजिली रिट्रीव कर सकते हो, बट यादें थोड़ी अजीब नहीं है? You remember some of the most old things, maybe uh, who was the one who took you to school for the first time? शायद वो आपको याद हो, शायद, right? You
eat pizza and you remember sort of your first party with your friends. How is it all happening? कैसे हो रहा है ये सारी चीजें कैसे हो रही है? हमारा दिल खराब हो जाता है, a damaged heart. Why can't we replace one? क्या फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि हम हार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं? Why do you feel pain? आज होमवर्क करके नहीं लगा गए, टीचर ने लगाया एक चटका. Why? फिर दर्द होता है. क्यों होता है ये? Why are viruses nasty? We are in 2 years in a pandemic. 2019 के दिसंबर में हुआ और 2021 का दिसंबर आ चुका है एंड एक नया वेरिएंट आ गया. Why are these? Now, don't worry if you haven't asked these questions because हमने शायद आपकी आदत डरा दी है याद करने की. How many chambers are there in a mammalian heart? आप यही याद करते रहते हो and you sort of keep on thinking inside the box. और शायद जब हम बहुत ज्यादा एक ही चीज पे फोकस करके उसी चीज को बार बार इतना पढ़ते हैं कि जस्ट हमारा पर्पस हो जाता है उस चीज को याद रखना, तो वी लूज इंटरेस्ट. अब मुझे आप सेम दिन गन्ने का जूस पीने बोलोगे तो आई वुड बी लाइक कि नहीं यार, एक दिन तो कुछ और चाहिए, राइट? सो मे बी इट्स नॉट एंटायरली योर फॉल्ट दैट यू डोंट लव बायोलॉजी, बट दीज क्वेश्चंस, इफ अगर आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू लव बायोलॉजी. पॉसिबिलिटी है कि आप बायोलॉजी को लव कर सकते हो. Why is it important to love biology anyway? Sir, I don't want to love biology. I am like, sir, हो गया मेरा, मैं फिजिक्स का बंदा हूँ. I'm not going to use biology at all in my life. ये मिथ भी अभी बहुत जल्दी टूट जाएगा. But let me tell you how biology आपके रोजमर्रा की जिंदगी में. Now, I'm very sure many of you might not have anything to do with agriculture. But ये agriculture आपका पेट भर रहा है. We are an agricultural economy after all, and it's in crisis, right? लैंड कम है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फूड डिमांड बढ़ती जा रही है. यही तो हम आपको पढ़ाते हैं फूड रिसोर्सेज में. हाँ, तरीका थोड़ा पुराना होता है, राइट? नाउ व्हाट एल्स? व्हाट इज दिस? सर, ये तो कीड़े हैं, पत्ते को खा रहे हैं. व्हाट इज द बिग डील अबाउट दिस? इसमें कोई नई चीज थोड़ी ना है. बट सोचो, ये सेम हरकत आपके खेतों में भी होता है. बहुत सारे कीड़े हैं जो बहुत सारे फसल को खा जाते हैं और शायद आपको इससे फर्क नहीं पड़ता. व्हाई? बिकॉज आप तो अमेजोन पे जाके अपनी ग्रोसरीज ऑर्डर कर लेते हो. बट देर आर पीपल हु फॉर whom दिस becomes अ बिग प्रॉब्लम. क्यों? लेस लीफ एरिया, लेस फोटोसिंथेसिस, लेस फूड फॉर यू. तो ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी हमारी रोज की लाइफ में इररिलेवेंट है. एक छोटी से छोटी चीज इज रेलिवेंट. पेस्टिसाइड्स. आज आपके मम्मी पापा आपको ये बात जरूर बोलते होंगे, बाजार का खाना मत खाया करो, केमिकल मिला होता है. बाजार के खाने की तो नहीं पता, बट बहुत सारे क्रॉप्स के ऊपर पेस्टिसाइड जरूर यूज किया जाता है. जो हमें पता है, हमें आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में बताया गया है कि बायो मैग्निफिकेशन कराता है और अल्टीमेटली हमारे अंदर ही एक्यूमुलेट होता है. तो क्या aren't there real problems, bigger problems to solve than building a car? मैं ये नहीं कहता I'm against building cars. Totally. I know that there's big companies, you need luxury cars and whatever. But क्या इन चीजों को देखने के बाद भी आपको लगता है biology is irrelevant? No, right? It only means that there's a real problem to solve. Biology is important in your daily life और आपको कुछ करना पड़ेगा. मैं ये नहीं कहता कि बायो ही पढ़ो, बिल्कुल नहीं. डोंट मिस्टेक इट फॉर दैट. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब भी अगले बार आपको बोला जाए कि बायो पढ़ के क्या करोगे, रिमेंबर देयर आर प्रॉब्लम्स दैट ओनली बायोलॉजी का नॉलेज कैन सॉल्व. और पिछले 2 साल ने ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है. वैक्सीन्स, द होल वर्ल्ड वाज आफ्टर वैक्सीन्स. व्हाई? बिकॉज कोविड के लिए कोई जनरेटर, कोई डीसी एसी बल्ब आपका कुछ नहीं कर सकता. You needed a vaccine. You needed the knowledge of biology, right?
नाउ एक वैसा ही बहुत चार्मिंग सोल्यूशन है बायोलॉजी का, जिसने हमें हमारा फूड प्रॉब्लम से बाहर निकलने का एक रास्ता सुझाया है। वर्टिकल फार्मिंग। हमारे पास लैंड कम है, तो अब जो है लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एक ही रूम में मल्टीपल रैक्स पे फार्मिंग कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी नेसेंट स्टेज में है, बट ये बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो डेजर्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। और ये टेक्नोलॉजी नासा में भी ने भी इस्तेमाल किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। अब कह दो कि ये बोरिंग है ना, कह दो कि ये बोरिंग है, इट्स नॉट राइट। तो मे बी वी डोंट लव बायोलॉजी बिकॉज हमने चीजों को टू मच फॉर ग्रांटेड ले लिया है। सर फसल तो दुकान पे गए और आटा खरीद कर ले आए, वी डोंट थिंक अबाउट आटा कहाँ से आया, वी डोंट थिंक अबाउट कि आटा बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अगर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया तो देयर वुड बी अ रियल क्राइसिस समडे, राइट? सो there are big companies, there are big labs around the world who are trying to make this simple technology of vertical farming more and more efficient. हम डिफरेंट कलर्स की लाइट्स यूज कर रहे हैं। अब ये बायोलॉजी से कैसे आया, आपको पढ़ाया तो जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कि ब्लू रे वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ सबसे ज्यादा आपका प्लांट एब्जॉर्ब करता है। उसी की टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग पर्पल कलर्स, थोड़ा सा ब्लू थोड़ा सा रेड, एक्सीलेंट फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बिल्कुल एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो ये सब कहाँ से हम कर पा रहे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वी आर इन्वेंटिंग, कुछ नया बना रहे हैं। अब ये रोबोट को देख लो, हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल केस है, बट ये रोबोट इन पत्तों के मॉइस्चर और मिनरल कंटेंट को रिकॉग्नाइज कर सकता है और डिसाइड करेगा कि क्या अभी ये प्लकिंग के लिए तैयार है या नहीं। Some things humans can't always do with that much perfection. तो क्या इनोवेशन का स्कोप नहीं है बायोलॉजी में? There's a lot. There's a lot. Now, similarly, many scientists around the world are working on smart farming, जहाँ पे टेक्नोलॉजी कैन टेल यू कि इज इट द राइट टाइम। जैसा अभी मैंने एक रोबोट का एग्जांपल दिखाया, टेक्नोलॉजी विल टेल यू कि इज द फ्रूट एट द करेक्ट टाइम टू बी पिक्ड अप। सो क्या we have all the knowledge that we want? No. This is the science which has a potential to change our lives, and this is where we need to work around, create smart solutions to most important problems. And there are people who are doing this. There are people who are doing this in India, right? So that is what you need to do. That is what biology is all about. That is why you would fall in love with biology. But उसके लिए you need to think out of the box. आपको बक्से के बाहर जाना पड़ेगा। एंड अगर आप अभी तक मेरा रिकॉर्डिंग ध्यान से सुन रहे थे, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द बक्सा आई एम बीन टॉकिंग अबाउट? व्हाट इज दिस बॉक्स? मैं हमेशा बोल रहा हूँ बक्से के बाहर, बक्से के बाहर। क्या है ये बक्सा? What is this box I am trying to talk about? कि बक्से के बाहर सोचना पड़ेगा, think out of the box. What is this box? It starts with an S. S letter से start होता है. Okay. If your answer was syllabus, you're roughly correct. क्यों बक्से के बाहर सोचना पड़ेगा? क्योंकि कई बार हम करते क्या हैं, सिलेबस को अपना दायरा बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस नई नॉलेज को अक्वायर करना ना रहकर बड़े एग्जाम्स बन जाते हैं। मुझे IOQJS क्वालिफाई करना है, मुझे NTSC स्कॉलर बनना है, मुझे नीट क्वालिफाई करना है। बट एग्जाम्स आपका ड्रीम नहीं है। आपका ड्रीम एक डॉक्टर बनना है शायद, नॉट क्वालिफाइंग नीट। नीट क्वालिफिकेशन इज अ गोल फॉर यू, एक स्टेप जिसको करने के बाद आप आगे जाओगे। एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाई आई ब्रॉट दिस सेशन, टू रिमाइंड यू कि यार सब्जेक्ट कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। यू जस्ट नीड टू हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। एंड ये बिल्कुल भी गलत नहीं है कि यू आर नॉट मच इनटू द सब्जेक्ट। मेरा मैथ्स कमजोर है, बिग डील। मेरा बायोलॉजी कमजोर है, बिग डील।
बट इसमें ना ही बायोलॉजी की गलती है, ना ही मैथ्स की गलती है, ना ही बायोलॉजी रट्टा है, ना ही मैथ्स कैलकुलेशंस है. Everything is as logical as much you are outside the boundary of your own preconceived notions, जो आपने ऑलरेडी समझ रखा है. जब तक आप उस दायरे में बंधे रहोगे, आपको कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग लग सकता है. Now I will talk a little bit more here and I will talk a little bit about a few things जो आप अक्सर जिसके सवाल ढूंढते हो. Right? Now, what you might be interested in. Are there scientists in biology? क्या बायोलॉजी में साइंटिस्ट्स होते हैं? हाँ. करते क्या है वो? बॉटनी इतनी बोरिंग क्यों है? बॉटनी बी, बोरिंग बी. जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्प्स कि भैया बॉटनी बोरिंग नहीं है. I don't know how many of you have seen this movie. This is a very beautiful movie जिसमें there is this astronaut called Mark Watney. I hope that's his name. And ये मार्स पे बेचारे अकेले फंस जाते हैं और इनके पास बचता है बस आलू. And using that aloo, he is growing this on Mars. Sir, ये तो मूवी है. बेटा, this is going to be your future. Why? Because look around. Things have changed. We are planning to go to moon. We are planning to go to Mars. और nevertheless, अगर ये हम कर रहे हो या ना कर रहे हो, we need innovations on Earth as well. We need doctors. We need many doctors. We need good doctors. तो बायोलॉजी का दायरा बहुत बड़ा है अगर आप इसको एग्जाम में ना बांधो तो. यू कैन ट्रीट डिजीजेस. डॉक्टर्स डू दैट. यू कैन डिजाइन क्योर्स एंड मेडिसिन. अभी अभी वैक्सीन इंडिया के भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया. यू कैन अंडरस्टैंड लाइफ. दैट मीन्स यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स व्हेन यू अंडरस्टैंड इट. यू कैन डू थिंग्स दैट कैन चेंज द प्लैनेट. कंजर्वेशन कैसे, कब, कहाँ. And obviously you can look beyond the planet. So biology is important in a lot of arenas and people in this field are rewarded. This is Dr. R.V. Ramani. He was awarded the highest civilian honor in India, that's Padma Shri. This is a drug, this is the first non-steroidal contraceptive. क्योंकि स्टेरॉइडल फॉर्म्स में इश्यूज आते हैं. नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो इंडिया ने बनाया था. दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया था इसे, सहेली. एंड वी डिड इट. आर्टिफिशियल पेस मेकर हम बनाते हैं. व्हेन आवर हार्ट फेल्स वी डू दिस. नाउ दिस इज something that I can't run for a longer time, but this is a video from the UCSF, University of California, I think, San Francisco. This device जो आपको दिख रहा है attached to the urinary bladder is a artificial kidney. They are working on this right now. How? I think I can show you just brief facet of this. So this device, it will just do. These two advanced technologies will make up a small biocompatible device. I hope you understood what I'm trying to show you. Right? Okay, now I should stop it. And this insulin. तो ये रोजमर्रा की चीजें आपको बायोलॉजी देती हैं. दिस इज व्हाट यू नीड टू सॉल्व. एंड इफ यू डोंट रिकॉग्नाइज दिस वुमन, दैट्स ओके. शी इज हेनरिटा लैक्स. इनके ट्यूमर सेल्स के बेस पे आज हमने बहुत सारी दवाइयों का एक्सपेरिमेंटेशन किया है. द फर्स्ट नॉट फर्स्ट बट द वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, जॉन साल्क ने जो बनाया था, उनका भी परीक्षण इन्हीं के सेल्स के ऊपर किया गया था. तो यार बायोलॉजी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितना आप उनको देखोगे, बट उसके लिए यू नीड दैट स्पिरिट. यू नीड टू फॉरगेट दोज नोशंस कि बायोलॉजी रट्टा है, बस एनटीएससी में आता है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है वरना मैं नहीं पढ़ूंगा. दिस इज एरोफार्म्स, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड हु आर प्रैक्टिसिंग वर्टिकल फार्मिंग. बड़े बड़े ओल्ड वेयर हाउसेस को ये अब खेतों में बदल रहे हैं.
एंड व्हाट आई मीन इज नॉट बाय यूजिंग एनी सॉइल। इस तरीके से वो अपना वाटर यूसेज 90 से 95% घटा लेते हैं, just by using the techniques that we teach you right from the very beginning, right? So guys, there's a lot that is going to come and you need to be prepared and you need to be driven, right? So today I will also talk about NEET. क्या है ये एग्जाम? ओके, सो नीट इज बेसिकली एन एग्जाम जिससे आप इंडिया में मेडिकल कोर्सेज के लिए चूज किए जाते हो, राइट? सो दैट इज द होल जॉब ऑफ नीट. नाउ इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, टू डिटरमाइन कि मेडिकल कॉलेजेस में एंट्रेंस आपका होगा या नहीं होगा. कौन लेता है आप ऑलरेडी जानते हो, 12th और इक्विवेलेंट और पीपल हु हैव ऑलरेडी गिवन देयर 12th. बट दीज आर ऑलमोस्ट एवरीथिंग्स, यू नो, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये करती है, राइट? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, यू नो ऑल द बेसिक थिंग्स अबाउट इट, राइट? कितने सीट्स हैं ना, ये डेटा थोड़ा पुराना है, द सीट्स मस्ट हैव इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट बाय नाउ, बट आई वांट यू टू लुक एट दिस फिगर. 15.94 lakh people appeared and there are only 78,000 seats. तो अभी तक मैं आपको एग्जाम्स के बारे में सोचने को नहीं कह रहा था और अभी मैं आपसे फिर से एग्जाम की बात कर रहा हूं. व्हाई? बिकॉज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू अभी तक वाज व्हाट शुड बी योर आइडियल प्लान. मैं आपको समझा रहा था कि क्यों बायोलॉजी पढ़ना बोरिंग नहीं है. बट व्हाई डिड आई ब्रिंग द टॉपिक ऑफ टेस्ट वंस अगेन? इसलिए क्योंकि what you really want to do, you want to become a scientist, you have to study for it. बिना करे नहीं होगा. मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा तो कैसे मैथ्स अच्छा होगा, राइट? तो आप जो भी करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच के दायरे के बाहर सोच रहे हो, सिलेबस के आगे सोच रहे हो, एंड यू थिंक दैट यस यू आर रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड, बट यू नीड टू क्वालिफाई दीज एग्जामिनेशंस जिससे आपका ये हो सके. सो व्हाट हैपेंस वंस यू क्लियर नीट? ये एक क्वेश्चन है जो बहुतों को नहीं पता, बिकॉज अभी तक आप बस नीट तक सोचते हो. मैं चाहता हूँ थोड़ा और सोचो कि होगा क्या, क्या क्या कर सकते हो आप नीट के बाद. सो ऑब्वियसली यू कैन एंटर डेंटल साइंसेस और फिजियोथेरेपी, और you can go for MBBS, that is Bachelor in Medicine and Bachelor in Surgery. यानी you are taught two things, medicine और surgery. यानी the next step जो मास्टर्स लेवल होता है उसमें यू गॉट टू चूज मास्टर्स, या तो सर्जरी या तो मेडिसिन. सो MS और MD. कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती. आप जो भी चूज करते हो, आप सारे डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी को उसके अंदर पढ़ते हो. सारे एनाटॉमिकल पार्ट्स कह लो एक तरह से, सबकी सर्जरी, सबका मेडिसिन. उसके बाद यू चूज अ सुपर स्पेशलाइजेशन, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी. तो बहुत ही लंबी जर्नी है, इससे डरना नहीं है. बट मैं ये जर्नी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग नीट पे इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि उनका ड्रीम डॉक्टर बनना था. नीट क्वालिफाई करना वाज जस्ट अ शॉर्ट टर्म गोल. कहानी तो अभी शुरू हुई है बॉस, राइट? तो ये होल सीक्वेंस बताने का बस एक ही नजरिया है कि अपने नजरिए को शॉर्ट टर्म मत रखो. आप सिर्फ एक एग्जाम को अगर अपना ड्रीम बना लोगे तो बाकी एग्जाम्स को का ड्रीम कैसे देखोगे, राइट? तो यू नीड टू बी ड्रीमिंग अबाउट, आई वांट टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट और अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट और एनीथिंग दैट यू वांट टू, एंड देन यू नीड टू वर्क ऑन इट. इतना ज्यादा एग्जाम सेंट्रिक मत हो जाओ कि आपके लिए पूरा सब्जेक्ट का ही क्रेज चला जाए. अब क्वेश्चन आता है, सर ठीक है समझ गए आपकी बातें, एग्जाम के बारे में नहीं सोचना, अपने ड्रीम के बारे में सोचना है, तो अभी क्या करें? सबसे पहली चीज, दौड़ना बंद करो. मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पढ़ना बंद करो, नो, दौड़ना बंद करो. क्योंकि जब हम दौड़ रहे होते हैं ना, तो हम बहुत कम चीजों को ऑब्जॉर्व कर पाएंगे. आप अगर फोटोसिंथेसिस को फटाफट पढ़ोगे, नहीं मुझे तो एकदम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, NADPH, ATP, केमियोस्मोसिस, एंड देन
ऑल द स्टेप्स ऑफ द डार्क रिएक्शन, आप रेलेवेंस नहीं समझ पाओगे। सो डोंट हरी, बिकॉज अगर आपको लॉन्ग टर्म में सही करना है, तो अगर आपका बेस अभी वीक रह गया बिकॉज आप जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो काम नहीं बनेगा। ट्राई डूइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा एवरी डे, ट्राई डूइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा। बहुत बार ऐसा होता है एंड आई गेट अ लॉट ऑफ दीज रिक्वेस्ट, सर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दो। बेटा क्रैश कोर्स में वी चेरी पिक द थिंग्स, ये तो पक्का आएगा, एंड समटाइम्स दैट डज वर्क आउट एंड समटाइम्स इट डजंट। तो अभी से अगर शुरुआत करोगे, थोड़ा थोड़ा अभी से करोगे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर ऐसा नहीं होगा कि बस सर क्रैश कोर्स चालू कर दो। यू विल से कि सर क्रैश कोर्स मत चालू करो, आप प्रैक्टिस करो, देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा। तो स्लो एंड स्टेडी आपको बताया जाता है, बट इट्स ऑल्सो फास्ट एंड स्टेडी। ज्यादा मत दौड़ो, दौड़ो धीरे धीरे, चलो धीरे धीरे पढ़ो, ट्राई डूइंग लिटिल एक्स्ट्रा एवरी डे, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स इन अ डीपर वे। भागो मत, डोंट ब्रिंग द एक्सक्यूज सर ये सिलेबस में नहीं है, या सर ये भी तो सिलेबस में है। Understand that the teachers that who are teaching you, they have been doing and dealing with the syllabus for more years than you are talking about that syllabus. Respect that. Now, ये चीज जो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, अपने दायरे को कभी किताबों तक, सिलेबस तक सीमित मत रखो। अगर हम आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हैं, वी ऑल्सो ट्राई टू इंस्टिल इन यू कि देखो इसका बाहर की दुनिया में इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आप फिजिक्स में करते हो, है ना, एक्शन रिएक्शन, पी इज इक्वल टू एम वी, और ये सब लगा के आपको रॉकेट्स के बारे में बताया जाता है कि देखो रॉकेट जाने समय एस्केप वेलोसिटी होती है, इस स्पीड से कम रहा तो रॉकेट नहीं उड़ पाएगा, एटमॉस्फेयर को नहीं जा पाएगा छोड़ के। उसी तरह बायो को भी वैसे ही लो। चाहे आपको इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज थोड़ा बोरिंग लगता हो, बट जाके तो देखो एक बार, विजिट अ विलेज एक बार, if you are not living around one, try to understand what are the local breeds of cows or chicken that are there in your area. Try to understand, पता चलेगा कि आपके चारों तरफ चीजें। now there's also a very blooming and blossoming field जो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, and sort of pandemic के बाद तो कुछ ज्यादा ही, that is biotechnology. व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी सॉल्व, बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है? तो अभी हम शुरुआत से कई ऐसे एग्जाम्पल देख चुके हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी इज डूइंग एवरीथिंग। वर्टिकल फार्मिंग वाज वन बिग गेम, एंड ऑब्वियसली कोविड ने एक चीज तो समझाई दिया है, यस वी नीड बायोटेक्नोलॉजिस्ट, सो वी डेवलप ड्रग्स, डिजाइन मेडिकल इक्विपमेंट्स। आपको याद होगा वेंटिलेटर्स, जब वेंटिलेटर्स की कमी आई थी, इसरो ने एक नोवेल वेंटिलेटर डिजाइन किया था जो एक साथ 2 और 4 लोगों को हवा दे सकता था, एंड वी वर इन अ रश, राइट? तो मेडिकल इक्विपमेंट्स, आपका यूवी सैनिटाइजिंग किट्स आ गए, राइट? तो बायोटेक्नोलॉजी इज वन दैट इज अराउंड एवरी सच थिंग, फ्रॉम योर स्मार्ट वॉचेस टू योर हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट पेसमेकर्स, सब में बायोटेक्नोलॉजी है। वी वांट टू टॉक अबाउट ग्रोइंग टिश्यू ऑगमेंट्स, क्यों हार्ट खराब हो गया तो एक पेसमेकर लगा दो, बट पूरा हार्ट खराब है तो कैन वी पुट अ न्यू हार्ट? So these are the areas जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ता है, राइट? हाउ कैन वी सप्लीमेंट द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को कैसे अच्छा बनाए, राइट? हाउ कैन वी हील द इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज इज ऑन इट्स राइज, राइट? सो देयर वाज दिस वेरी फेमस मूवी जो अभी आई, डोंट लुक अप। यूएस में एक मूवी आई थी, इसका स्टोरी प्ले, इट्स कॉल्ड, इट वाज अ सटायर, सटायर में जब जहां sarcastically or थोड़ा सा metaphorically we try to talk about a very very important issue in a very light hearted way. तो globally climate change का फर्क आ रहा है, तो how can we solve it? We can solve it by then. Now biotechnology में what can you do? Obviously 10th करोगे, 12th करोगे, but then you can go for a BSc or a BTech, that is a bachelor of science or bachelor of technology. A BTech biotechnology, then you can go for masters or MTech, and finally you can go a PhD, which earns you a doctorate degree. And people start researching right from here, bachelor's say, masters may, PhD may. This is how you go. And you can also go for postdoctorate if that's something we want, right? So
there's a lot that you can go for pharmacology, pharmaceuticals, जिसमें आप नए नए novel drugs बनाने वाले हो, right? And there are a lot of things that you can do. There are a lot of ways that you can do all of this. So how does it all start? It all starts right in now. अभी वो समय है जब आपका ये सब शुरू हो रहा है, and that means this is a time when you need to be cautious, you need to be prepared कि मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं सुनना, बायोलॉजी रट्टा है, नो, close your ears. That's not true. Biology is not रट्टा. Yes, there are certain parts जिसको हमें पढ़ना पड़ता है, वैसे हम उसका कुछ नहीं कर सकते बेटा, बट क्या करें, अगर सिर्फ उसी नेगेटिव चीजों पे ध्यान दोगे तो पॉजिटिवली आगे नहीं बढ़ पाओगे. And if you have more questions, please reach your teachers, not just me. Any teachers that you have, reach them. उनसे पूछो. They definitely know more than you. They might not know everything. But उन्होंने शायद आपसे ज़्यादा ज़रूर देख रखा है, तो उनको ज़्यादा पता ज़रूर है. उनसे पूछो, they will tell you. ठीक है? And guys, if you have any doubts regarding this or anything else, feel free to reach me at Sona Singhan Academy. That is my Telegram. ठीक है? Also remember, I take special classes on Unacademy app as well, which are completely free. That means you don't need to pay or buy a subscription. पहले आप स्पेशल क्लासेस देखो. इट्स लाइक यूट्यूब, मोर रियल टाइम देन यूट्यूब. आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लिविंग लाइव पोल्स ले सकते हो, लीडर बोर्ड्स होगा वहां पे. तो इससे आपको पता चलेगा इफ और नॉट अनअकैडमी ऐप कैन बेनिफिट यू. ये नए बैचेस अभी अभी स्टार्ट हुए हैं. दैट इज 3 जैन से स्टार्ट होने वाला है. प्रीमियम बैच फॉर फाउंडेशन क्लास 10 टर्म 2 और क्लास 9 टर्म 2 दोनों के लिए, राइट? सो दीज आर सम अमेजिंग बैचेस दैट आर कमिंग योर वे. मेक श्योर यू चेक देम आउट. एंड इस वीडियो को सब लाइक करना जरूर याद रखना. Share it with your friends and also try and make sure to subscribe to the channel and press the bell icon. उसी से आपको सारा notifications आएगा. And if I can't, no, I will meet you tomorrow as well. So, but in advance, happy new year. I hope this year turns out to be an amazing one for you. Thank you so much, guys. I'll meet you soon. Take care. Bye bye.